السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کیبنٹ آور کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ خان۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ پاکستان کو افغانستان میں جنگ کے نتائج پر مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ امریکی کانگریس میں امریکی نقصان پر پاکستان پر الزام لگائے جانے پر حیرت ہے۔ افغانستان اور مغرب پاکستان پر الزام لگانے کے لیے بھارت کے ساتھ مل کر جعلی خبریں چلاتے رہے۔ ہم اپنی بقا کے لیے لڑے اور بہترین فوج اور انٹیلیجنس آلات کے باعث دہشت گردی کو شکست دی۔ افغانستان میں امن و استحکام کے لیے نئی افغان حکومت کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان کا امریکی جریدے واشنگٹن پوسٹ میں مضمون۔ شہر قائد میں اربن ٹرانسپورٹ کے جدید منصوبے۔ کراچی سرکلر ریلوے کا سنگ بنیاد۔ 30 اسٹیشنز اور 29 کلومیٹر ٹریک پر مشتمل منصوبہ 20 ارب روپے سے زائد کی لاگت سے مکمل ہوگا۔ کراچی کے مسائل کے حل کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومت کو مل کر چلنا ہوگا۔ 2 سال میں پانی کی فراہمی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بنڈل آئلینڈ منصوبے سے کراچی میں سرمایہ کاری آئے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کا تقریب سے خطاب۔ کاروباری ماحول بہتر بنانے اور غیر ملکی سرمایہ کاری راغب کرنے کے لیے اصلاحات کا آغاز۔ تاجروں اور صنعتی شعبے کو سازگار ماحول کی فراہمی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تجارتی سفارتکاری، نئی اور بہتر منڈیوں تک رسائی کے لیے بھی کوششیں کر رہے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کی جھنگ چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹریز کے وفد سے ملاقات میں گفتگو۔ شہباز شریف کے خاندان میں وراثت کی لڑائی چل رہی ہے۔ نون لیگ میں انتشار 2 کے بجائے 3 گروپ بنتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یقین ہے کہ 2023 کے انتخابات شفاف اور غیر جانبدارانہ ہوں گے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس۔ اور مودی حکومت کی فسطائیت کے خلاف پورے بھارت میں پیا جام، مکمل شٹ ڈاؤن۔ نظام زندگی مفلوج، 11 ماہ سے ظالمانہ زرعی قوانین کے خاتمے کے لیے سراپا احتجاج۔ کسانوں نے شاہراہیں اور ریلوے ٹریک بند کر دیے۔ 14 ٹرینز منسوخ۔ کانگریس سمیت اپوزیشن کی تمام سیاسی جماعتیں ہڑتال میں شامل۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بڑھیں گی خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. कैबिनेट आवर में तफसीलात का आगाज़ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के कराची विजिट के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर काम तेज़ी से जारी है। कराची सर्कुलर रेलवे एक अहम मनसूबा है जिसकी तकमील में वफाकी हुकूमत अपना भरपूर ताउन फराहम करेगी। कराची में सर्कुलर रेलवे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कराची के 3 नालों की सफाई पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि कराची को पानी की फराहमी का मनसूबा K4 आइंदा 2 साल में मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क में शहर तेजी से फैल रहे हैं, शहरों की मनसूबाबंदी वक्त की ज़रूरत है। बंडल आइलैंड मनसूबे में सरमायाकार गहरी दिलचस्पी रखते हैं। इस मनसूबे से सबसे ज़्यादा फ़ायदा सिंध बिलखुसूस कराची को होगा। वज़ीर आला सिंध मनसूबे पर नजरसानी करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कराची में मौजूद, उन्होंने आज सर्कुलर रेलवे का संग बुनियाद भी रखा। साथ साथ शहर कायद में K4 मनसूबा पानी की फराहमी के हवाले से भी उन्होंने अपने खिताब में उसका जिक्र किया और आइंदा 2 साल में अहम मनसूबा ये भी मुकम्मल हो जाएगा। ज़मीर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर कराची से, नुमाइंदा PTV न्यूज़। ज़मीर अब्बास, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के कराची विजिट और ख़ास तौर पर कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। कितना बड़ा मनसूबा है, कितनी बड़ी आबादी इससे मुस्तफ़ीद होने जा रही है? जी बिल्कुल, कराची में जैसे कि आपको पता है कि जो ट्रांसपोर्ट का मसला है वो काफ़ी संगीन रहा है। सबका हुकूमतों ने कभी इसके ऊपर कोई संजीदगी का इजहार नहीं किया, जिसकी वजह से ये मसला मजीद संगीन होता गया। तो मौजूदा हुकूमत ने इस मसले के हल के लिए आते ही पहले तो ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट जो था, ग्रीन बस प्रोजेक्ट, उसको कंप्लीट किया। और अब जो दूसरा सबसे बड़ा मसला है जो कि कराची को एक नए लेवल पे लेके जाएगा, वो है कराची सर्कुलर रेलवे। कराची सर्कुलर रेलवे के जो नया मनसूबा है ये तकरीबन 207 अरब रुपए की लागत से शुरू होगा और इस पे 36 महीने मतलब कि 3 साल के अरसे में इसे मुकम्मल किया जाएगा। इस मनसूबे की सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ अभी के लिए नहीं बल्कि 30 साल की प्लानिंग के लिए बनाया जा रहा है। और अभी इसमें पहले साल जो है वो देखा जाएगा कि तकरीबन 4 लाख अफराद जो हैं वो सफ़र कर सकेंगे और उसके बाद 30 साल तक तकरीबन ये 11 लाख तक अमाउंट जो है वो पहुंच जाएगी। इसके अलावा तकरीबन 25 ट्रेनें हैं जिसके लिए डबल ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं। ये जो निज़ाम होगा ये आम रेलवे के निज़ाम से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होगा। जो रास्ते पहले जो ट्रैक्स जो थे रास्तों पे आते थे उन सबको ख़त्म करके यहाँ या तो फ्लाईओवर्स बनाए जाएंगे या फिर अंडरपासेस बनाए जाएंगे। 30 स्टेशन होंगे और तकरीबन इस मनसूबे को जो BRT सिस्टम जो है जैसे कि ग्रीन लाइन बस सर्विस है या जो दीगर बस सर्विस स्टार्ट होंगी उनके साथ भी इंटीग्रेट किया जाएगा ताकि एक बंदा जब चाहे ट्रेन पे सफर कर सके उसी कार्ड से वो बस से भी सफर कर सकता है। तो इस तरह जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगी वो इंतहाई कम होगी। लोग अपनी गाड़ियों पे जाना प्रेफर नहीं करेंगे, इस ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे।
ये आपको मैं बताता चलूँ कि आज इमरान खान ने आज इसका संग बुनियाद रखा है। जो पहले फेज का ये तकरीबन 20.7 अरब रुपए का है, जिसमें तकरीबन 24 लेवल क्रॉसिंग जो है, यानी कि वो ट्रैक जो कि रोड्स पे आ रहे थे उनकी एलिमिनेशन है। इनको खत्म करने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन किया जाएगा, मतलब उससे काम स्टार्ट हो जाएगा और इस पर जो काम यानी कि वही इंफ्रास्ट्रक्चर के या तो फ्लाईओवर्स बनाए जाएंगे या फिर अंडर पासेस बनाए जाएंगे। ये एक गेम चेंजर साबित होगा कराची के शहरियों के लिए, कराची की तरक्की के लिए, और काफी टाइम से क्योंकि कराची में इसकी बहुत जरूरत भी थी तो इसलिए इसके ज्यादा एम्फेसिस भी है और इसका बहुत बेसब्री से इंतजार भी है। जी ज़मीर, हम जानते हैं कि वज़ीर आज़म का जो विज़न है वो ये है कि यकसा तरक्की हो सारे मुल्क में। मुझे ये बताइएगा, और इसी विज़न के तहत कराची की तरक्की के लिए 5 बड़े मंसूबे भी शुरू किए हैं। विफाक की पाइपलाइन में और भी बहुत मंसूबे हैं जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत आगे आएंगे। किस तरह हम कराची को ट्रांसफॉर्म होता देख रहे हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म का विज़न तो बहुत वाज़े है और बहुत संजीदा नज़र आते हैं वज़ीर आज़म। अगर हम बात करें कराची के रोज़गार के हवाले से, पानी के मसाइल हो वहाँ पर, सेहत के हो मसाइल, रोज़गार के हवाले से जितनी भी मामलात हैं उस पर वज़ीर आज़म की गहरी नज़र है। तो आने वाले वक्त में हम किस तरह का कराची देखेंगे? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए आज अपने वज़ीर आज़म ने अपनी स्पीच में भी इस चीज़ का इजहार किया कि जो पिछले साल कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत जो काम स्टार्ट किया था, जो बड़े मंसूबे स्टार्ट किए थे, उसमें वफाक और सूबा हुकूमत का जो है वो मुश्तरका किरदार रहा है और वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं, क्योंकि लोगों का एतमाद जो है अब इन मंसूबों पर बहाल हुआ है। क्योंकि पहले के अगर आप देखिए तो ये ट्रेंड रहा है कि प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए जाते थे, मंसूबे अनाउंस किए जाते थे, लेकिन उन्हें मुकम्मल नहीं किया जाता था, जिसकी वजह से लोग हमेशा उन अनाउंसमेंट्स को अनाउंसमेंट तक रखते थे। लेकिन अब पहली दफ़ा यह हुआ है कि जो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत मुश्तरका तौर पर ये कोशिशें कर रहे हैं कि जो मंसूबे अनाउंस करें उन्हें मुकर्रर वक्त में मुकम्मल करें। आज इस चीज़ की तारीफ जो है वज़ीर आज़म ने भी की कि सिंध हुकूमत ने भी बहुत अच्छा काम किया है। ये एक अच्छी नवीद है कराची के शहरियों के लिए, सिंध के लोगों के लिए, कि अब जो वफाकी और सूबाई हुकूमत लोगों की तरक्की के लिए मिलकर काम करने को तरजीह दे रहे हैं। अपने इख्तलाफात बिल्कुल हैं उनके, आज जो वफाकी वज़ीर असद उमर हैं उन्होंने भी ये कहा कि इख्तलाफात जरूर हैं, लेकिन जहाँ प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे यकसुई भी है और हम मिलकर काम भी कर रहे हैं और उसका रिजल्ट यही है कि चाहे वो 3 नालों की सफाई थी उसमें भी सिंध हुकूमत जो है वो उसमें पार्टनर रही है, बहुत अच्छे से वो नालों की सफाई हुई। कराची में जब बारिशें हुई तो काफी जल्दी पानी जो है वो ड्रेन भी हुआ। इस तरीके से K4 मंसूबे में भी सिंध हुकूमत पार्टनर है, उस पर वो अच्छे से काम कर रहे हैं। KCR में जो लैंड की जो इश्यूज थे रेलवे के, वो भी सिंध हुकूमत ने खाली करवाए। तो तमाम जो प्रोजेक्ट्स मेन प्रोजेक्ट्स थे उसमें सिंध हुकूमत पार्टनर है और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो मीटिंग्स रही हैं इसमें, प्लान जो रहे उसमें ये बिल्कुल अच्छे से काम हो रहा है। तो ये बहुत एक अच्छी नवीद है और न सिर्फ ये बल्कि इसके अलावा भी जो मजीद प्रोजेक्ट जो फ्यूचर में आएंगे उसमें भी ये जो यूनिटी है या इत्तेहाद है या जो टीम वर्क है वो काफी मुफीद साबित होगा कराची और सिंध के लोगों के लिए। जी बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया ज़मीर अब्बास, आप हमें आगाह कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची सर्कुलर रेलवे की संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब किया, संग बुनियाद भी रखा और कराची के लिए एक अहम प्रोजेक्ट है। जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं वो कम होंगे और ख़ास तौर पर जो ट्रांसपोर्टेशन का मसला कराची में एक दरीना मुतालबा है कराची के अवाम का, उस पर भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने रोशनी डाली। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि आम आदमी को सहूलियात फ़राहम करना है और इसके लिए विफाक और सूबाई हुकूमत दोनों को मिलकर काम करना है और मिलकर आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। रिजवान, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की, जिन्होंने पाकिस्तान को, जिनका कहना है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान में जंग के नताइज पर मूरद इल्ज़ाम नहीं ठहराना जाना चाहिए। अमरीकी कांग्रेस में अमरीकी नुकसान पर पाकिस्तान पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात पर हैरत है। अमरीकी जरीदे वाशिंगटन पोस्ट में वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने शाया होने वाले मजमून में लिखा है कि 2001 से बार बार कहता रहा हूँ कि अफगान जंग नहीं जीती जा सकती। पाकिस्तानी हुकूमतें माजी में कानूनी हैसियत के हुसूल के लिए अमरीका को अफगानिस्तान के मामले पर खुश करती रही हैं। वज़ीर आज़म ने लिखा कि 9/11 के बाद माजी के मुजाहिदीन को दहशतगर्द करार दिया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका की जंग की हिमायत करने के बाद अस्करी ग्रुप्स ने पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ जंग शुरू कर दी। उन्होंने लिखा है कि हम अपनी बका के लिए लड़े और बेहतरीन फौज और इंटेलिजेंस आलात के बायस दहशतगर्दी को शिकस्त दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मज़मून में लिखा कि 9/11 के बाद यके बाद दीगरे आने वाली अफगान हुकूमतें अफगानों की नज़रों में मकाम पैदा नहीं कर सकी। यही वजह थी कि अफगानिस्तान में कोई भी बदउनवान और नाकाम हुकूमत के लिए लड़ने को तैयार न था। वज़ीर आज़म ने लिखा कि क्या 3 लाख अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के मुकम्मल तौर पर हथियार डालने पर पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा सकता है? इस हकीकत को तस्लीम करने की बजाय अफगान और मगरबी हुकूमतें पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने के लिए भारत के साथ मिलकर जाली खबरें चलाती रहीं। वज़ीर आज़म ने लिखा कि वे बेबुनियाद इल्ज़ामात के बावजूद पाकिस्तान ने सरहद के बायोमेट्रिक कंट्रोल और सरहद की मुश्तरका निगरानी की पेशकश की। हमने अपने महदूद वसाइल के बावजूद अफगानिस्तान के साथ सरहद पर बाड़ लगाई। वज़ीर आज़म ने लिखा कि हमें अब इल्ज़ाम तराशी का रवैया तर्क कर देना चाहिए और अफगानिस्तान के मुस्तकबिल की जानिब देखना चाहिए।
درست اقدام یہ ہے کہ افغانستان میں امن و استحکام کے لیے نئی افغان حکومت کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے مضمون میں لکھا کہ طالبان کی حکومت اور بین الاقوامی برادری کی شمولیت سے مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ درست اقدامات سے ہی ہم دہشت گردی سے پاک اور معاشی طور پر خوشحال افغانستان کے مقاصد حاصل کر لیں گے۔ انہوں نے لکھا کہ اگر ہم نے ماضی کی غلطیوں کو دہرایا تو بے چینی، بڑے پیمانے پر مہاجرین اور دہشت گردی جیسے مسائل بڑھیں گے اور تمام فریق متاثر ہوں گے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی سے جنگ چیمبر آف اسمال انڈسٹریز اینڈ انڈسٹری کے وفد نے لیاقت علی ملک کی قیادت میں اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وفد سے گفتگو کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ ملک میں معاشی اور تجارتی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے صنعتی شعبے کو سازگار ماحول فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملکی کاروباری ماحول بہتر بنانے اور غیر ملکی سرمایہ کاری راغب کرنے کے لیے اصلاحات کا آغاز کیا گیا ہے۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ حکومت صنعتی شعبے کی مدد کے لیے جامع کوششیں کر رہی ہے۔ حکومت تاجروں کو عالمی منڈیوں تک مقابلے کے قابل بنانے کے لیے پیداواری لاگت کم کرنے کے اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے نوجوانوں کو اپنے کاروبار کے لیے کامیاب جوان پروگرام کے تحت 100 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ صدر مملکت نے وفد پر زور دیا کہ وہ تاجروں کو ٹیکس ادا کرنے اور معیشت کے استحکام کے لیے حکومتی کوششوں کا ساتھ دیں۔ برطانیہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے اعزاز میں پاکستان ہاؤس میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی شرکت کی۔ وزیر خارجہ نے مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو اجاگر کرنے میں برطانیہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے کردار کو سراہا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے برطانوی پارلیمنٹ کے ارکان سے اپیل کی کہ وہ افغانستان کے مسئلے کو پارلیمان میں ضرور اجاگر کریں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ افغانستان میں جو عدم استحکام نظر آ رہا ہے وہ سابقہ کرپٹ حکمرانوں کی وجہ سے ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ 20 سال کی حمایت اور 2 کھرب ڈالر سے زیادہ سرمایہ کا استعمال سب بے سود ثابت ہوا۔ انہوں نے کہا کہ 9/11 کے بعد ہم سے تقاضا کیا گیا اور ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اتحادی بنے۔ ہمارے 80,000 لوگ شہید ہوئے اور ہمیں 150 ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان اٹھانا پڑا۔ پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہماری طرح مغربی دنیا بھی افغانستان میں اجتماعیت کی حامل حکومت دیکھنا چاہتی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پاکستان ہاؤس لندن میں کشمیر سے تعلق رکھنے والے معروف برطانوی پاکستانی رہنماؤں اور کمیونٹی کے نمائندوں سے ملاقات کی۔ وزیر خارجہ نے مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو اجاگر کرنے اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے مؤثر آواز بلند کرنے پر برطانوی پاکستانیوں کے کردار کو سراہا۔ انہوں نے مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی قابض افواج کی جانب سے جاری انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں اور مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ سمیت عالمی سطح پر اٹھانے کے حوالے سے پاکستان کی مسلسل اور غیر متزلزل کاوشوں سے بھی آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان نے حال ہی میں ٹھوس شواہد پر مبنی ایک ڈوسیے مرتب کیا ہے۔ اس ڈوسیے میں بھارتی قابض افواج کے سنگین جنگی جرائم کی تفصیلات شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ برطانوی پارلیمنٹ میں مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے مباحثے کا انعقاد خوش آئند ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ میں ہونے والے اس مباحثے نے ایک بار پھر مقبوضہ جموں کشمیر میں ہونے والے بھارتی مظالم کو دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغانستان کے اندرونی معاملات میں کسی طرح کی مداخلت نہ کرنا پاکستان کی پالیسی ہے۔ افغانستان کے عوام آزاد ذہن کے مالک ہیں اور وہ اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں۔ اگر افغانستان کو ہماری مدد کی ضرورت ہوئی تو ضرور تعاون کریں گے۔ الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت افغانستان میں امن خراب کرنے والے ملک کے طور پر اپنا کردار بند کرے۔ یہ رویہ امن عمل کے لیے سود مند نہیں ہے۔ India has been playing the role of a spoiler in Afghanistan, and they have not been helpful in the peace process. In fact, they were obstructionists in the process, and if they had not colluded with the Ghani government and blocked the negotiation process, there could have been a political settlement. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ ملک میں سائبر کرائمز میں اضافہ ہوا ہے۔ سائبر کرائم کی 1 لاکھ شکایات آئی ہیں۔
اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کی امن و امان کی صورتحال پر روزانہ IG سے رپورٹ لی جاتی ہے. ضرورت کے مطابق بعض علاقوں میں کل موبائل سروس بند رہے گی. وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ سیاست کے حوالے سے 2 سال بعد نیا ماحول دیکھ رہا ہوں. 2023 کے انتخابات شفاف ہوں گے. منصفانہ انتخابات کے لیے حکومت اور الیکشن کمیشن کے درمیان بہتر فضا ہونی چاہیے. ہم نیوزی لینڈ انٹرپول کی تعریف کرتے ہیں اور FIA نے ہم نیوزی لینڈ میچ کو سبوٹاج کرنے والے خفیہ ہاتھوں اور دستانے پہنے ہوئے ہاتھوں کے قریب ہیں اور ساری دنیا میں ان کو بے نقاب کریں گے. 2 ارب روپے کا امیجیٹ فنڈ ریلیز کر رہے ہیں تاکہ سائبر کرائمز کے سارے ملک میں لوکیٹرز ہوں, اس کے پاس سارے ملک میں ہائی ٹیک ہو اور وہ ٹیکنیکل لوگوں کو بھی بھرتی کر سکیں. تورخم اور چمن میں IBMS لگا دیا گیا ہے تاکہ آنے جانے والوں کا ڈیٹا ہو. میں نے تو 1.5 سال 2 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ نون میں سے میم نکلے گی. اب میں نون میں سے کچھ اور نکلتا ہوا بھی دیکھ رہا ہوں. پہلے میرا خیال تھا 2 گروپ ہوں گے, اب میں یہ پیشن گوئی کرتا ہوں یہاں 3 گروپ ہوں گے. ناظرین، صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ حکومت ملک کو سیاحوں کی جنت بنانے کے لیے پرعزم ہے. سیاحت کا شعبہ کاروبار کے فروغ، عوام کی خوشحالی اور ملک کی اقتصادی ترقی میں نمایاں کردار ادا کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے. عالمی یوم سیاحت کے موقع پر اپنے پیغام میں صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ ماضی میں سیاحت جیسے انتہائی اہم شعبے پر توجہ نہیں دی گئی. موجودہ حکومت نے جامع اقدامات، پالیسی، وفاق اور صوبوں کے درمیان مؤثر اشتراک کار اور نجی شعبے کے بامانی شراکت داری کو یقینی بنایا ہے. انہوں نے کہا کہ سیاحت اور قیام و طعام کے شعبے میں مراعات کے حوالے سے رواں مالی سال 2021-22 کے بجٹ میں کیے گئے اقدامات بھی قابل تعریف ہیں. صدر مملکت نے کہا کہ حکومت سیاحت کے شعبے کی ترقی اور مقامی اور بین الاقوامی سرمایہ کاری کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھی ہے. صدر مملکت نے کہا کہ قدرت نے گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر سمیت پاکستان کے 4 صوبوں کو پرکشش قدرتی مناظر سے نوازا ہے. پاکستان سیاحوں کو قدرتی مناظر کے ساتھ ساتھ قدیم تہذیب، متنوع ثقافت، عوام اور لذیذ کھانوں سے مستفید ہونے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ سیاحت کے شعبے کی پائیدار ترقی کے حوالے سے کوئی دو رائے نہیں. دنیا بھر میں سیاحت کا شعبہ زر مبادلہ کمانے کا ایک بڑا ذریعہ ہے. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ کامیاب سیاحتی مقام بننے کی اہلیت والے علاقے معاشی ترقی کے علاوہ دیگر فوائد بھی حاصل کر سکتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے علاقے تخبائی میں بدھ مت تہذیب کے قدیم آثار پاکستان کے بیش بہا گندھارا ورثے کا حصہ ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے قدیم بدھ عبادت گاہ کی خوبصورت تصاویر بھی ٹویٹر پر شیئر کی. ناظرین، پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج سیاحت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد مختلف تہذیبوں کو قریب لانا اور عالمی سطح پر سیاحت کے رجحان کو فروغ دینا ہے. مزید تفصیل بتائیں گے اس کا مقصود. ریگستان، جنگلات، پہاڑ، جھیلیں اور خوبصورت مناظر. پاکستان کو قدرت نے ہر قسم کی زمین اور آب و ہوا سے نوازا ہے جو سیاحوں کی دلچسپی کا باعث بنتی ہے. پاکستان کی تہذیب اور مختلف علاقوں کی زبانوں نے اسے بہت سے رنگوں کا گھر بنا دیا ہے. ٹورزم جیسے جیسے پروموٹ ہوگا، جیسے جیسے آگے بڑھے گا، لوگوں کو روزگار ملے گا، ریونیوز بڑھیں گے اور الحمدللہ ڈیجیٹلائزیشن کرنے سے، گورنمنٹ کی سرپرستی ہونے کی وجہ سے اور بہتر اقدامات کی وجہ سے TDCP کی انکم میں 178% انکریز ہوا ہے. قراقرم کی آسمان کو چھونے والی چوٹیوں سے لے کر کراچی کے خوبصورت ساحلوں تک اور شمالی علاقوں میں قدرت کے بے شمار نظارے جنہیں دیکھتے آنکھیں نہیں تھکتی پاکستان میں موجود ہیں. مختلف قلعے، تاریخی مقامات، آثار قدیمہ سمیت بہت کچھ یہاں موجود ہے. وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں موجودہ حکومت نے سیاحت کو فروغ دینے اور سیاحوں کے لیے ہر طرح کی سہولیات پیدا کرنے پر خصوصی توجہ دی ہے. پاکستان میں یعنی لاہور کے علاوہ کہیں بھی اور بھی دور دراز جا سکتے ہیں سیر و تفریح کے لیے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نیچر کے قریب ہو کر جتنے بھی دن وہاں گزرتے ہیں بے شمار اچھے ہوتے ہیں، اچھی میموریز بناتے ہیں. موجودہ حکومت پنجاب، گلگت بلتستان، بلوچستان، خیبر پختونخوا سمیت
पूरे मुल्क में सयाहों को हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां है। वज़ीर आज़म के इसी विजन को पंजाब में भी बढ़ाया जा रहा है। टूरिज्म पंजाब ऐप्स में पंजाब के 511 तफरीही और सयाहती मकामात की मालूमात दी गई हैं। सयाहत किसी भी मुल्क की मुआशी तरक्की का अहम जुज़ है। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए सयाहत बेहतरीन किरदार अदा कर सकती है। उसका मकसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। उसका मकसूद आज के अहम दिन के हवाले से रिपोर्ट कर रही थी और यकीनी तौर पर अब नाज़िया जो पेशरफ्त हो रही है टूरिज़्म के हवाले से, उसमें देखा जाता है कि लोग जा रहे हैं उन मकामात की जानिब जहाँ पर एक हैशटैग चलता है माउंटेन्स कॉलिंग, और हम उस तरफ जाएंगे, एडवेंचर करेंगे और ट्रैवलिंग करेंगे और उन इलाकों को एक्सप्लोर किया जाएगा जो अभी तक किसी ने उनको विज़िट नहीं किया। और अब ख़ास तौर पर जब हम देखते हैं कि हुकूमत ने बाकायदा तौर पर इस शोबे के ऊपर खुसूसी तवज्जो दी है तो काफ़ी ज़्यादा इसमें बेहतरी भी आ रही है और लोगों का रुझान भी बढ़ रहा है। ना सिर्फ मकामी लोग बल्कि दूसरे ममालिक से भी लोग सयाहत के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। और रिजवान, हमने देखा कि वज़ीर आज़म गाहे बगाहे अपने ट्विटर पर भी जो है वो शेयर करते रहते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ खूबसूरत मकामात की तस्वीर, जिससे लोग राग़िब होते हैं और सयाहत का जो है फ़रोग़ हासिल होगा। इसी पर बात करेंगे वज़ीर सयाहत गिलगित बल्तिस्तान राजा नासिर अली खान हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। राजा साहब, आज तो सयाहत का आलमी दिन है, आप सयाहत के वज़ीर भी हैं, फिर गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत का हिस्सा भी हैं, टूरिज़म के ऊपर काफ़ी ज़रा फोकस भी है। आज के दिन के हवाले से क्या तैयारियां हैं और अब बतौर वज़ीर सयाहत के शोबे में गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत जो इक़दाम कर रही है, साथ साथ जो वफाकी हुकूमत इक़दाम कर रही है, इस पर आपसे हम बात करेंगे और हमारा राब्ता आपसे मुनक़ता हुआ है। तो गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जाना या फिर हमें आज़ाद कश्मीर की मुख्तलिफ वादियाँ, अपने नॉर्दर्न एरियाज़ को देखना, इवन कि अगर हम सिंध बलूचिस्तान में भी जो अनएक्सप्लोर्ड इलाके हैं उनकी तरफ जाएँ तो ऐसे इलाके हैं कि शायद दुनिया में कहीं मौजूद नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है और ज़रूरत इस बात की है कि हम जो है इस पाकिस्तान को अच्छी तरह प्रोजेक्ट करें और उन इलाकों को जहां पर हम चाहते हैं कि लोग भी आकर देखें, उस हवाले से ज़रूर अपनी भी इंफॉर्मेशन अगर है उसको भी हम शेयर करें और उन इलाकों को ज़रूर विजिट करें। राजा साहब, आज के दिन के हवाले से बताइएगा, कितना अहम दिन है आज और किस तरह से बतौर वज़ीर सयाहत आप इसको देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखें, आज तो इंतहाई अहम दिन है। आज एक्चुअली कुछ एक्टिविटीज़ हम कर नहीं पाए गिलगित बल्तिस्तान में, एक तो SOPs की वजह से, कोरोना की वजह से, और थोड़ी सी यहाँ पे मुहर्रम की जो 40वें की वजह से हम थोड़ी सी एक्टिविटीज़ यहाँ पे कर नहीं पाए। लेकिन आज का दिन टूरिज़्म के हवाले से इंतहाई अहम दिन है क्योंकि टूरिज़्म ही है गिलगित बल्तिस्तान की शनाख्त। टूरिज़्म एक ऐसी इंडस्ट्री है गिलगित बल्तिस्तान के मुआशरत के लिए बहुत ही अहमियत किरदार अदा कर सकता है, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए। तो इसमें ये कि हम गिलगित बल्तिस्तान इस दफ़ा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लोगों का रुझान रहा गिलगित बल्तिस्तान की तरफ। तो हुकूमत पाकिस्तान के इमरान खान साहब का भी वजन यही है कि हम टूरिज़्म को प्रमोट करें और साथ साथ हमारे चीफ मिनिस्टर खालिद खुर्शीद साहब के भी काफ़ी तवज्जो रहा और हमने बहुत अच्छी अचीवमेंट्स इस दफ़ा इस साल हमने पाए। इसमें सबसे पहले जो हमने विंटर टूरिज़्म को की प्रमोशन के लिए काम किया, जब हमने शुरू की हुकूमत, इस वक्त जब हमने संभाला तो गिलगित बल्तिस्तान की सियाहत के ऊपर कोई तवज्जो नहीं थी। लेकिन अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें इस वक्त स्ट्रीम लाइन में है, बहुत सारी चीज़ें इस वक्त पाइप लाइन में है। बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स है जो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की अट्रैक्शन और यहाँ की कुदरती खूबसूरती को मजीद दोबाला करेंगे। और आपको एक चीज़ मैं शेयर करता जाऊँ, पहले इनकम भी काफ़ी इस दफ़ा हमने जनरेट की है गिलगित बल्तिस्तान की, जो ट्रैकिंग परमिट से और एडवेंचर टूर के परमिट से। पहले ये GB काउंसिल और कश्मीर अफेयर के अंडर हुआ करते थे, अब अल्लाह के फजल करम से गिलगित बल्तिस्तान टूरिज़्म के अंडर है। और इसके साथ साथ हमने यहाँ पे काफ़ी चीज़ों में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, कनेक्टिविटी के ऊपर और इंटरनेट के ऊपर SEO अभी फ़िलहाल एक ही हमारे पास है, लेकिन हमने तमाम 4Gs को इनवाइट की हुई है ताकि यहाँ पे आने वाले सारे टूरिस्ट जो फैसिलिटेट कर सकें इंफ्रास्ट्रक्चर और होटल के रूम्स, होटल्स भी काफ़ी। जी जी
मुझे ये बताइएगा कि हम जानते हैं दुनिया में जो सयाहत का जो शोबा है वो ज़र मुबादला कमाने का एक बहुत बड़ा जरिया माना जाता है और उस पर लोग ख़ास तौर पे ममालिक जो हैं वो तवज्जो देते हैं कि गैर मुल्की वहाँ आए ताकि पैसा जनरेट हो। मुझे ये बताइएगा कि क्या SOPs रखे गए हैं अगर कोई गैर मुल्की वहाँ पर विज़िट करना चाहते हैं तो, क्योंकि कोरोना की सूरत हाल है जैसा आपने बताया कि अभी उस तरह से आप वर्ल्ड टूरिज़्म डे नहीं मना सके हैं, लेकिन लोग आते तो हैं वहाँ पर टूरिस्ट, तो SOPs का किस तरह से आप लोगों ने इंतज़ाम किया है? और दूसरी बात ये बताइएगा कि पिछले 1-2 साल में कितने टूरिस्ट वहाँ पर आ चुके हैं? देखें जी, पिछले 1-2 सालों की निस्बत इस दफ़ा टूरिस्ट का बहुत ज़्यादा फ्लो रहा माशाल्लाह से। जून से लेकर जुलाई के एंड तक तकरीबन 3.5 लाख सिर्फ 2 महीनों के अंदर यहाँ पे लोगों ने ट्रैवल की और इंटरनेशनल भी काफ़ी आए इस दफ़ा हमारे पास। और अनफॉर्चुनेटली नेपाल में इंडियन कोविड की वजह से काफ़ी हमारे एक्सपेडिशंस कैंसिल हो गए, लेकिन वर्ल्ड इंटरनेशनल फॉरेनर्स का काफ़ी रुझान भी रहा। तकरीबन 5% इस वक्त हमारे पास इस रेशियो में फॉरेन टूरिस्ट है। इस वक्त अमेरिका से मुख्तलिफ मुल्कों से लोगों ने यहाँ मूव किया और यहाँ आए, यहाँ के एटमॉस्फेयर देखा, यहाँ की बहुत ज़्यादा मुतासर होके गए हैं। यहाँ की कुदरती खूबसूरती से, जो नेचुरल ब्यूटी है, यहाँ के लोगों की हॉस्पिटैलिटी की वजह से काफ़ी लोग इंस्पायर होके गए हैं। तो उम्मीद है कि आइंदा साल इंशाल्लाह इसके डबल लोग आएंगे यहाँ पे। जो पिछले 2 साल है, जो पिछले साल से की निस्बत काफ़ी लोगों ने इस दफ़ा सफ़र की और काफ़ी अच्छे खासे इनकम भी जनरेट हुआ हमारे अल्हम्दुलिल्लाह टूरिज्म की वजह से। होटल्स को और गाड़ियों की और बहुत सारे मुख्तलिफ लोग इससे टूरिज्म से फ़ायदा उठा रहे हैं। यहाँ के लोकल जो हमारे पॉपुलेशन है उनको भी काफ़ी फ़ायदा हो रहा है टूरिज्म की वजह से। जी बहुत शुक्रिया राजा नासिर अली खान, वज़ीर सयाहत गिलगित बल्तिस्तान, आपने हमारा साथ दिया, बहुत शुक्रिया। सेहत के शोबे को यकीनी तौर पे आगे बढ़ाने की ज़रूरत है रिजवान, और ये ज़रूरत है इस वक्त की कि हम जो है वो टूरिज़्म को प्रमोट करें जितना हो सके। हुकूमत के इकदाम में हमारा भी कुछ फ़र्ज़ है, उसमें भी अपना हिस्सा डालना ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है तो 4G के लिए मुख्तलिफ टेलीकॉम कंपनीज़ को इन्विटेशन है गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की जानिब से कि वहाँ पर आएँ, और ताकि जो सयाह हैं उन्हें एक तो इन्फॉर्मेशन के लिए और दूसरा इंटरनेट की सहूलियात अगर मुमकिन है फराहम की जा सकती हैं तो इससे टूरिज्म ज़्यादा बढ़ेगा। आगे बढ़ेंगे और आपको बताते चलें कि हिमालय के दामन में वाक़ दुनिया की बुलंद तरीन हमवार तरीन द्योसाई स्कर्दू से 45 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। द्योसाई को बेमिसाल बुलंदी के बायस दुनिया की छत भी कहा जाता है। जी हाँ जी, और यहाँ पर भूरे रीछ भी हैं और भूरे रीछों का मस्कन इस वसी मैदान के दिल फरेब मनाजिर की सैर करा रहे हैं हमें निसार मेहदी। आइए रिपोर्ट देखते हैं। स्कर्दू शहर से जुनूब की जानिब बल खाती गैर हमवार सड़क, एक तरफ ऊंचे पहाड़ तो दूसरी जानिब गहरी खाइयां। 1.5 घंटे के मुश्किल सफर के बाद बिलाखिर ऐसा मंजर सामने आता है जिसकी वुसअत को दोनों आंखों के पर्दे पर समोना मुमकिन नहीं। द्योसाई 2 अल्फाज का मजमुआ है, द्यो और साई, यानी द्यो का साया। ऐसी जगह जिसके बारे में सदियों तक ये माना जाता रहा कि यहाँ द्यो बसते हैं। हिमालय के दामन में वाक़ई दुनिया का बुलंद तरीन हमवार मैदान द्योसाई सतह समंदर से 13,500 फीट बुलंद है। द्योसाई को 1993 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया ताकि यहाँ मौजूद जंगली हयात को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। द्योसाई के सरसब्ज मैदान, बर्फपोश पहाड़ और गहरे नीले शफाफ झीलों के दिलफरेब नज़ारे सयाहों को फितरत के बेहद करीब ले जाते हैं। इसके अलावा सुनहरी ट्राउट मछलियाँ, भूरे रीछ, सुर्ख लोमड़ियाँ और शरारती मार्मेट द्योसाई की मुनफरिद पहचान है। गर्मियों में सैकड़ों किस्म के फूल इस वसी मैदान को दुल्हन की तरह सजा देती है, जबकि साल के 8 महीने द्योसाई मुकम्मल तौर पर बर्फ से ढका रहता है। द्योसाई टॉप से शोसर झील तक 2.5 घंटे का सफर कुदरत की ऐसी नेमतें दिखाएं जो आपके गुमान में भी न हो। शोसर झील का शुमार दुनिया की बुलंद तरीन झीलों में होता है, जिसे यहाँ के मुकामी जबान में अंधी झील भी कहा जाता है। इस खूबसूरत झील के अकब में नांगा पर्वत की बर्फ पोश चोटियां भी नजर आती हैं। गिरदो नवाह की किसी पहाड़ी से नजारा करें तो शोसर झील अपनी पूरी रनाइयों के साथ इंसानी दिलनुमा शक्ल में नजर आती है। ये झील द्योसाई का दिल है और द्योसाई गिलगित बल्तिस्तान का दिल है। निसार मेहदी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।
निसार मेहदी की खूबसूरत रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की जानिब। आपको बताएं, वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन कहते हैं कि हिंदू साम्राज्य हुकूमत भारत के मुस्तकबिल का सबसे बड़ा अलमिया होगा। अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर ने कहा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने 8 अशरे कबल ये पेशगोई कर दी थी। आज नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की मुस्लिम कुश पॉलिसीज इस अलमिये का अमली इजहार हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने झूठ बोलने के रिकॉर्ड कायम किए हैं। अपने एक ट्वीट में गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भारतीय शहरी से गुफ्तगू की वीडियो शेयर की, जिसमें रॉ के ऑफिसर ने भारतीय शहरी से कहा कि हमारे लिए काम करो और पाकिस्तान में जाकर बम चला दो। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि भारत खित्ते में अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है, जिसका दुनिया को नोटिस लेना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने पहले भी भारतीय अज़ाइम को नाकाम बनाया है और आइंदा भी नाकाम बनाएंगे। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि वक्त आ चुका है कि अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर आलमी इदारे भारतीय दहशतगर्दी पर खामोशी खत्म कर दें। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से। अफगानिस्तान में चीन के सफ़ीर वांग जू ने काबुल में अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात की। मुलाकात में चीन के सफ़ीर ने कहा कि अफगानिस्तान को इंसानी इमदाद की फराहमी तरजीह है और इसमें कोई ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन अफगान अवाम की ज़रूरियात पर नज़र रखे हुए और इनका मुल्क अफगानिस्तान को इंसानी इमदाद फराहम करेगा। उन्होंने आलमी बरादरी पर भी जोर दिया कि वह अफगानिस्तान को बिला ताख़ीर इमदाद फराहम करे। चीन के सफ़ीर ने कहा कि अफगानिस्तान के ज़रिए मुबादला के ज़खायर एक कौमी एहसास हैं और इन्हें अफगानिस्तान पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अफगान वज़ीर ख़ारजा ने इमदाद देने पर चीन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आलमी बरादरी और हमसाया ममालिक अफगानिस्तान को इंसानी इमदाद फराहम करें। दूसरी जानिब अफगान उबूरी वज़ीर इत्तलात खैरुल्लाह खैरखास से तुर्की के सफ़ीर ने काबुल में मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान दो तरफ़ा मामलात पर बातचीत की गई है। फ़िरक़ैन ने तुर्की और अफगानिस्तान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात को वसअत देने समेत इत्तलात और सकाफ़त के शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। और नाज़रीन, वज़ीर ममलिकत मौसमी तब्दीली ज़रताज गुल ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खिदमत खल्क पर यकीन रखती है। गुज़िश्ता अदवार हुकूमत में पसमानदा इलाकों को नज़रअंदाज किया गया। पायगाह और मामूरी में बिजली की फराहमी के मनसूबों के इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर ममलिकत ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर क़यादत पंजाब में महरूम इलाकों में रिकॉर्ड तरक्याती काम हो रहे हैं। NA 191 के 61 से ज़्यादा देहातों को बिजली फराहम कर दी गई है। वज़ीर ममलकत इत्तलात फ़ारूक हबीब कहते हैं कि कोरोना के दौरान पूरी दुनिया की मईशत मुतासिर हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दुनिया को स्मार्ट लॉकडाउन का तस्वुर दिया। फैसलाबाद में ताजिर बरादरी से खिताब करते हुए वज़ीर ममलकत ने कहा कि कोरोना के बावजूद हमारी मईशत तरक्की कर रही है। कोरोना के दौरान बिजली के बिलों में 50 अरब रुपए का रिलीफ दिया गया। उन्होंने कहा कि SMEs की तरक्की से रोजगार फराहम होगा और बरामदात बढ़ेंगी। हमने कोरोना के साथ अपने मुल्क की जो मैशियत है उस मैशियत का पहिया भी चलाना है और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को इस बात का एहसास था और इस हवाले से पाकिस्तान के अंदर हमें बड़ी तनकीद अपोजिशन की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से, मरीम नवाज़ की जानिब से, बिलावल की जानिब से, जी लॉकडाउन करें, मुल्क में लॉकडाउन क्यों नहीं कर रहे। सिंध में पूरी उन्होंने लॉकडाउन कर दिया, हज़ारों लाखों लोग बेरोज़गार होकर सड़कों के ऊपर आ गए। हमने मुकम्मल लॉकडाउन जो है वो नहीं लगाया, लोगों के कारोबार भी चलाए, कोरोना को भी हैंडल किया और आज पाकिस्तान के अंदर 5.5 करोड़ से ज़ायद लोगों को वैक्सीनेशन जो है वो लग चुकी है। कोरोना के दौरान हुकूमत ने 50 अरब रुपए का जो है वो बिजली के बिलों के अंदर रिलीफ फराहम किया। और अब कुछ बात करेंगे कोरोना सूरत हाल की। मुल्क हुकूमती पॉलिसियों के मुस्बत समरात। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह मुसलसल दूसरे रोज़ भी 4% से नीचे रही। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 48,732 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,757 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। वबा से 31 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 3.6% रही। दूसरी जानिब मुल्क भर में कोरोना वबा से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल भरपूर अंदाज से जारी है।
صوبہ پنجاب میں ڈینگی کے پھیلاؤ کے حوالے سے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے حکام کو ہدایت کی کہ مؤثر حفاظتی اقدامات ڈینگی کنٹرول ٹیموں کی مانیٹرنگ کرتے ہوئے ڈینگی کے حوالے سے غلط رپورٹنگ پر کارروائی کی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ ڈینگی کنٹرول اور بچاؤ اقدامات کے حوالے سے کوتاہی برداشت نہیں ہوگی، جبکہ ڈینگی سے متعلقہ ٹیمیں کارکردگی بہتر بنائیں، ہسپتال الرٹ رہیں اور تمام ہسپتالوں کے ڈینگی وارڈ فنکشنل ہونے چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ ڈینگی کے خلاف اقدامات میں عوام کی آگاہی بنیادی عمل ہے۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ کو ڈینگی کے پھیلاؤ کے اسباب، پیدا شدہ صورتحال اور اس سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی کے بارے میں بریفنگ بھی دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق ضلع ناظم ساہیوال رائے حسن نواز نے لاہور میں ملاقات کی۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ عوامی خدمت کرنے کے لیے شعبہ بازوں کی سیاست کی کوئی وقت نہیں، ماضی کے سیاستدانوں نے کرپشن سے اثاثے بنائے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ انتخابات میں اپنی شکست سے دوچار سیاستدانوں نے ابھی سے رونا دھونا شروع کر دیا ہے۔ 2023 کے انتخابات میں شفاف اور ایماندار قیادت ہی آگے آئے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ ہم عوام کے بہتر مستقبل کے لیے کوشاں ہیں۔ اسلام آباد میں سعودی عرب کے قومی دن کی مناسبت سے رنگا رنگ تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں میڈیا نمائندوں اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ تفصیل جانتے ہیں نمرہ سہیل سے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات تاریخ اور مذہب کے رشتوں میں بندھے ہیں۔ دونوں ممالک عوامی محبت کے بندھن میں بندھے، ماضی کی تمازت اور مشترکہ مستقبل کے جذبے کے ساتھ ہر خوشی اور غم میں ایک ساتھ ہیں۔ اسلام آباد میں ہونے والی تقریب بھی انہی رنگوں سے مزین تھی۔ پاکستان میں سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کا کہنا تھا کہ موجودہ دور میں دونوں ممالک کے تعلقات کو بہت فروغ حاصل ہوا ہے۔ The motion of Pakistani and the relation from the court heart between two brotherly country, and inshallah will we work inshallah for those relations inshallah to increase. تقریب میں شریک پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے ایگزیکٹو پروڈیوسر اون ساہی نے کہا کہ میڈیا سمیت پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات باہمی اعتماد کی بنیاد پر وقت کے ساتھ ساتھ مزید مستحکم ہو رہے ہیں۔ پاکستان اتنا اہم ہے کہ کووڈ کے دنوں میں بھی انہوں نے اپنا قومی دن کی چھوٹی سی تقریب جو ہے یہاں پہ کیا۔ یہاں پہ سفیر ہیں ان کے رسپیکٹڈ، انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان ان کے لیے سب سے اہم ملک ہے، اور واقعی پاکستان کے لیے بھی سعودی عرب سب سے اہم ملک ہے۔ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بہت زیادہ ہے۔ جب بھی پاکستان پر کوئی مشکل وقت آیا، مشکل گھڑی آئی، تو سعودی عربیہ نے بالکل اپنے بھائیوں کی طرح ہمیں ٹریٹ کیا اور ہماری مدد کی۔ قومی دن کی مناسبت سے سعودی سفیر نے تقریب کے شرکاء کے ساتھ مل کر کیک بھی کاٹا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات مذہبی اقدار اور مشترکہ روایات پر مبنی ہیں۔ قومی دن کے حوالے سے منعقدہ تقریب میں بھی کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملا۔ نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، پشاور میں ایک فاؤنڈیشن کے تحت ایسے تعلیمی ادارے کا انتظام چلایا جا رہا ہے جہاں یتیم اور نادار بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ اسکول کی کارکردگی کے بارے میں رپورٹ کر رہے ہیں پشاور سے انور اللہ خان۔ اس وسیع و غریض اور بہترین عمارت میں عزیز جان انسٹیٹیوٹ آف لرننگ قائم ہے۔ انسٹیٹیوٹ میں جمعہ دام تک صوبے کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں غریب اور مستحق بچے اور بچہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ ادارے کی جانب سے فیسوں میں سبسڈی دی جاتی ہے اور کتابیں اور دیگر سہولیات بھی فراہم کی جاتی ہیں۔ عزیز جان انسٹیٹیوٹ آف لرننگ کا افتتاح 2016 میں عمران خان نے کیا تھا۔ اسکول کے معیار کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں کے طالب علموں نے پشاور تعلیمی بورڈ کے زیر اہتمام میٹرک کے سالانہ امتحان 2021 کے ٹاپ 20 میں سے 8 پوزیشنز حاصل کیے۔ تمام جدید جتنی بھی میتھڈالوجیز ہیں وہ یوز کی جاتی ہیں یہاں پہ، اور بچوں کو ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ بچہ یہاں سے جو ہے سیر ہو کر جائے۔ ہماری ٹارگٹ یہی ہوتی ہے کہ ہم سب سے پہلے انہی جو سب سے زیادہ مستحق بچے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم انہی کو جو ہے پریفر کرتے ہیں۔ پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء اور طلبات کا کہنا ہے کہ عزیز جان انسٹیٹیوٹ کے بدولت ان کا معیاری تعلیم کے حصول کا خواب پورا ہوا۔ فیس بھی ان کی بہت کم ہے اور بہت اسٹرکٹ اسکول ہے، اور ان کی پڑھائی آؤٹ اسٹینڈنگ پڑھائی ہے ان کی۔ انسان کی محنت جو ہے وہ انسان کو بہت آگے لے کے جاتی ہے۔ یتیم بچوں کے لیے یہ ادارہ بہت زیادہ قابل عزت اور بہت زیادہ اچھا ہے۔ آج کے یہ نوجوان طالب علم آگے جا کر نہ صرف ملک و قوم کی خدمت کریں گے بلکہ دنیا میں پاکستان کا نام بھی روشن کریں گے۔ انور اللہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور۔
नूरुल्लाह खान की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अब बढ़ेंगे कराची की जानिब और कराची के मौसम के हवाले से कुछ बात करेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट गया। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शिद्दत वाली मानसून हवाओं का सिस्टम आज सिंध में दाखिल हो रहा है, जिसके बायस कराची में कल से तेज़ बारिश का इम्कान है। बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा, जिसमें तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ तेज़ और मूसलाधार बारिश भी हो सकती है, जिसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों थरपारकर, बदीन, ठट्टा, सांगड़, उमरकोट, हैदराबाद समेत दीगर इलाकों में भी गरज चमक के साथ तेज़ हवाओं और बारिशों का इम्कान है। बारिश का सिलसिला 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इसी पर बात करेंगे माहिर मौसमियात कराची से सरदार सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सरदार सरफराज साहब, मौसम कराची का एक दफ़ा फिर बदल रहा है और कराची के साथ साथ अंदरूनी सिंध में भी बारिशों की पेशगोई है। किस शिद्दत की बारिश होगी? देखिए, इसमें एट टाइम्स एट प्लेसेस काफ़ी शदीद बारिश भी मुतवक्के है, ख़ासकर जो सदरन सिंध है उसमें कराची, ठट्ठा, बदीन, थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास ये इलाके आ जाते हैं, हैदराबाद भी। तो इसी तरह से ये सिलसिला आगे बढ़ता हुआ बलूचिस्तान के जो साहिली इलाके हैं, जैसे आगे और मारा है, पसनी है, और उस तक भी अच्छी बारिश हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि जो लो प्रेशर एरिया इंडिया की तरफ से, सेंट्रल इंडिया की तरफ से मूव करता हुआ आ रहा है, वो जब गुजरात पे पहुंचेगा तो फिर अरेबियन सी से मज़ीद उसको मॉइस्चर मिलना शुरू होगा, तो वो ज़्यादा शिद्दत उसके पकड़ने का इम्कान है। तो उसके पेश नज़र ये ज़्यादा बारिशों की पेशन गोई की गई है। अच्छा सरदार सरफराज साहब, बारिश कराची और सिंध तक महदूद रहेगी या इसके असरात बलूचिस्तान और पंजाब में भी पहुंचेंगे इन बारिशों के? देखिए, ये अगर जैसे कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो लो प्रेशर एरिया जब गुजरात पे पहुंचेगा और फिर अरेबियन सी से कुछ सपोर्ट उसको मिलेगी, यहाँ के टेम्परेचर ज़्यादा हैं, उस वजह से वो दोबारा से री इंटेंसिफाई हो सकता है, वो एक दोबारा शिद्दत इख्तियार कर सकता है। और अगर ज़्यादा शिद्दत उसने इख्तियार कर ली, उसको हम वाच कर रहे हैं, तो कल तक ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। तो फिर सिंध के साथ साथ पूरे सिंध में, फिर सदरन पंजाब में भी, जैसे रहीमियार खान, बावलपुर और उधर ईस्ट बलूचिस्तान के इलाके हैं, कोलू, सिब्बी और बार खान, नीचे खुशदार, लसबेला, और आगे मैंने कहा आपको जैसे मकरान डिस्ट्रिक्ट और उसका जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट है मलिका, इन सब में अच्छी तेज़ बारिश होगी और समुंदर में भी तो गियानी आ सकती है उसके नतीजे में। बिल्कुल सही। अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग भी जारी की गई है कराची में और सिंध के कुछ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। तो सरदार सरफराज साहब, ये जो मानसून का सिलसिला है जो भारत की जानिब से आ रहा है पाकिस्तान में, ये आखिरी स्पेल होगा या इसके बाद भी कुछ एक्सपेक्टेड है मज़ीद मानसून के हवाले से जो बारिशें हो सकती हैं? देखिए, सिंध की और ये जो जनूबी पाकिस्तान कह लें आप, इसकी हद तक तो ये फ़िलहाल तो आखिरी देख रहा है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, इसलिए कि मानसून इस दफ़ा कुछ स्ट्रेच कर रहा है, अक्टूबर के पहले हफ्ते तक भी कम अज़ कम वो प्रोलांग कर रहा है। तो यहाँ तो यही इम्कान है कि 2 अक्टूबर तक ये सिलसिला रहेगा और फिर यहाँ से सबसाइड कर जाएगा। लेकिन फिर ऊपर नॉर्थ में बल्कि एक दिन पहले ही 1 तारीख से इम्कान है बारिशें शुरू होने का, और वहाँ भी 4-5 दिन का स्पेल होगा ये, यानी 4-5 अक्टूबर तक एटलीस्ट अच्छी बारिशें होंगी उधर भी। जी बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज आपका।